So we're about to go live in another minute or so. So all the best to everybody. Ria, all the best. Sir, all the best. Thank you. Now. Good evening, everyone. We're honored to welcome all the dignitaries, academicians, industry professionals, and our DO students to the Pan India webinar, Film Factors, organized by the Department in Multimedia and Mass Communication, BA MMC, of Srimati Mithibai Motiram Kandani College of Commerce and Economics, in association with Board of Industry Academia Partnerships. We sincerely thank all participants for such an overwhelming response. We have received registrations even from Tier 2 and Tier 3 cities. Let us begin the session on an auspicious note with the Saraswati Vandana, offering our respect and seeking guidance from the goddess of knowledge. Ya kundendu tusharhara dhavana Ya shubhravastravruta Thank you for that. I now request Asha to give the opening Veena We at B with enhancing the collective potential of students, we aim to bridge the gap between industry and academia. Igniting minds and awakening hearts, that's our vision and mission. The primary objective of every session is to echo its vision statement. We have a team of experienced trainers, facilitators, and academicians who have catered to varied learner groups, right from school children, college students, school and college faculty, army officers, police officers, doctors, lawyers, self-help groups, Gram Panchayat, senior citizen associations, and many more. In its short tenure, BIP has conducted more than 3 lakh investor awareness programs and various customized training programs, many. We aim at doing so during these challenging times as well, which is why we have come up with an initiative of webinar management where BIP, along with colleges like MMK, continue to educate individuals through live seminars on various topics. These seminars are available on our YouTube channel, which is the BIP official. So I now request Ria to take it from here. Thank you, Ashna. Now, may I please request Dr. Megha Samani from MMK College to come and take it from you, please? Thanks, Ria. I belong to MMK College, very renowned college. Srimati MMK College was established in 1961 under the bannership of HSNC Board, Hyderabad Sindh National Collegiate Board, by its founding fathers, Vidyasagar Principal K.M. Kundnani and Advocate Advani. It is always believed giving education differently with a commitment is the slogan of Srimati MMK College. It's a commitment of Srimati MMK College. We never taken a graduate as its finished product, but we considered how much we had prepared them for their life. We are thriving for constantly a committed and creative education. More about MMK College is always less in say. We are a king in commerce in the queen of Mumbai suburbs, that is Bandra. We are best in sports. We are best in community outreach. We have accounting museum. We have entrepreneur. We have innovation cell. We have incubation cell. We are a Atmanirbhar MMK. So MMK is a leading brand. We lead everywhere. Sometime, if you get the time, come and join us in MMK. Thank you, Ria. Now it's over to Kishore sir, our principal, Dr. C.A. Kishore Peshuri. Unmute yourself, please. Thank you, Megha.
It has been a great honor that on this day, 2 days after the university set up, MMK is back in action with a very great program on a very novel idea, that is Film Factors. And I'm proud to have my friend Deepak Watwani, who has agreed to be a guiding force for both drama and film for our college. I would say he's a brand ambassador in Sindhi community particularly, and he has produced a large number of films which are quite popular, and I would compare him to Subhash Ghai because he is also present, or more properly Devanand, I would say, of Sindhi cinema, because he acts, produces and directs. So I would say the Devanand of Sindhi cinema, that's what the proper word is. And MMK Mitibai Motiram Kundani College, as Megha Madam rightly told, is a very famous college in Bandra. It belongs to a linguistic minority, and we have cared for the Sindhi community as such. Today, before beginning the talk, let me have the privilege of inviting Shobha Madam for a very innovative venture which we are going to start today. We are going to launch today on Sindhi language. So I request the teacher who has been here for the last 30 years to talk about this online Sindhi course. Madam Shobha Madam, please. Shobha Madam? Hello. Yeah, she's not there. Yeah. So this online Sindhi course for the first time under the aegis of National Council of Promotion of Sindhi Language, Dr. Pratap Rai Panjani has initiated the idea. The Sindhi course will be taught totally online. I would say language is no barrier. और अगर आपको सिंधी बात करने नहीं आती अपनी मातृभाषा तो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए because it will also teach you communicative Sindhi also. Show your interest at the end of the program in a feedback form which will be sent to you, and we will get back to you for joining this course. So I repeat, this is the first unique venture which is initiated by National Council for Sindhi Promotion Language under the aegis of National Council for Promotion of Sindhi Language. We are starting an online Sindhi course. I request maximum Sindhi participants to join this course. It will be online, and it will be a certificate will be awarded both by MMK and NCPL, and it will help you to, I would rather say, to save the language, which is, I would say, which we cannot speak, at least learn to speak, learn to write certain words. This script, which you will be teaching, will be Devanagari. The books and material all will be supplied online. So we are coming out with the modalities. Once you show your interest, a request is that please learn Sindhi and show your interest after the end of the feedback form. Coming back to the program as such, I would also congratulate Aarti Madam, who has, as a coordinator, tried to have various innovative programs on BAMC for the students. And she is quite popular coordinator as far as the BAMC, that is Bachelor in Mass Media and Communication, is concerned. And with her initiative, we have launched a series of webinars. I'm proud that my friend again is here, and let's hope he continues. Over to Aarti Madam, please. Yes, Aarti Madam. Ria, you can continue. All right, thank you, ma'am. Thank you, sir. Y'all have given us such good insights, especially for the Sindhi program. I think I'm going to be the first one to join. Great, great. Thank you. Thank you. I would now like to introduce our guest speaker for today's webinar, Mr. Deepak Watwani. Mr. Deepak Watwani is a TV and stage anchor, actor, writer, producer, and director involved in the theatre and film activities from the last 32 years. He is the founder of the Sindhi Youth Group, socio-cultural organization from theatre group aimed at the development of art and culture through stage, TV, theatre, and cinema. Since the year 1988, he is involved in writing and directing Sindhi and Hindi dramas, 1 act, 2 act, and even 3 act ones. The dramas he has directed and acted in are Masudhivayo Ayya, Khoto Sikko, Paisa Vasool,
Shad Takara, Hik Bate Baba Gude Anede, Pet Mein Soor, 1 2 Cha Cha Cha, Sacha Ahe, Khilta Sahi, Shahid, Mateli Zal, De Mathe Par Kanhije Hatta. Moreover, he also conducts regular workshops for the new talents at Sindhi Youth Circle, that is in Ulhasnagar. Nowadays, in the modern age of digital technology, his group established a production banner, VTV, under which 7 regional feature films are released all over India and even overseas. That is Hikba Te Baba Gudde Anede, Jani Juda Nakar, Hikba Te Returns, Son of Sindhi, Sindhi Ani, Sindhi Sahin, Welcome Lakshmi. All these feature films are written, produced, and directed by Deepak Sir. His hard work towards this field is of more than 32 years, and for that, he has received a huge response from his viewers. But he desires to prove himself more on the route of upliftment of the film industry. So, we are so fortunate to have you here, and thank you for accepting our invitation and gracing us with this session. Before Deepak comes, I would request Shobha Madam to be there. Shobha Madam, if you are there, you can just talk. Hello. Yeah, Shobha Madam, yeah, please. Shobha Madam. Hello. Yeah, Shobha Madam, you can talk. Hello. Yeah. Hello. Yeah, Shobha Madam, you can go ahead. Yeah. Good evening, everybody. Good evening, everybody on the dais. I'm supposed to introduce you for the Rashtriya Sindhi Boli Vikas Parishad. This was registered at Delhi in the beginning in Vadodara in 2003. We started our courses. There's a 3-tier course. That is Sindhi Certificate course, Sindhi Diploma course, and Sindhi Advanced Diploma courses. They are in both the scripts, Devanagari as well as in Arabic. But we introduced Sindhi Boli in Devanagari script because the children don't know to speak. So we started doing it in Devanagari script. And this courses of the HRD Ministry of Sindhi Boli Vikas Parishad, that is NCPSL, is the each course is the duration of the course is 100 hours. We propose to start on 22nd of June 2020, since it's auspicious day. We'll have 1 hour lecture every day from Monday to Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. The age limit for the enrolling of this course, the minimum age is 10 years from onwards. So anyone who would like to speak Sindhi, learn reading, writing, know about Sindhyata and many other things about culture and heritage of Sindhis, it's not confined only to the Sindhi community. Each and every one, because language has no bar. So each one of us can join this group and definitely learn any of these courses. Those who have finished Sindhi certificate course can join in for Sindhi diploma course. And if diploma course is finished, you can join in for Sindhi advanced diploma courses. So this is all about for the Sindhi Rashtriya Sindhi Boli Vikas Parishad, New Delhi. Thank you. Thank you, Shobha Madam. Yeah. Thank you. Deepak sir, all over to you. Thank you, sir. Thank you very much. Hello, friends, my dear students, all the participants, all the viewer of this webinar, Film Fest. Department of BA in Mass Communication and Multimedia of Shrimati Mithibai Motiram Kundanani College of Commerce and Economics and Board of Industries Academia Partnerships have collectively organized this webinar on film factors. So, I am very, very thankful to all the management authorities, especially the principal, Dr. C.A. Kishore Peshori sir, coordinator Aarti Ahuja madam, and all the management authorities of Shrimati MMK College and the technical team. Myself, Advocate Deepak Watwan, though by profession I am an advocate, but as I do have a 33 years of experience for stage drama activities and filmmaking. So this experience brings me here to speak in front of you for this particular subject, that is the film factors. See, we have started
Our cultural group in the year 1988 with the aims and objectives to promote the talent in youth. CHM कॉलेज था मेरा, तब वहां पर जो एक्टिविटीज हुआ करती थी, आपके दिनों में जो फैकल्टीज हैं बाइफरकेट हो गई, काफी सारी हैं। उस जमाने में जब मैं CHM कॉलेज का स्टूडेंट था, सेम बोर्ड था, हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड, तो वो जो फैकल्टीज थी तब हुआ करती थी आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, तीन ही फैकल्टीज थी। और उस समय हम एनुअल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते थे। तब मैं देखता था कि किसी भी फैकल्टी का स्टूडेंट हो, सभी पार्टिसिपेट करते थे। उनके अंदर एक कलाकार था। साइंस के स्टूडेंट को भी जब बोला जाता था कि आपको डांस करनी है, आपको गाना गाना है, किसी ड्रामा एक्टिविटी में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो वो पार्टिसिपेट करते थे बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ। कभी कभी तो उनमें प्रोफेशनलिज्म दिख जाता था। हमारा मकसद था न्यू टैलेंट को प्रमोट करना, उनकी प्रतिभाओं को सिटी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबके सामने लाना। और साथ ही साथ एक मकसद था। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। इस पर्टिकुलर एज, एज ऑफ कॉलेज, you need extracurricular activities along with your studies. आपका मन भटके ना। इस उम्र में आपको एक्टिविटीज चाहिए जिसमें आप का मन किसी ऐसी चीज में लगे जहां आपका मन भी बहल जाए और साथ ही साथ समाज की बदनामियां ना मिले। मतलब यू शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन बैड हैबिट्स, बैड कंपनी। कहीं पर आप बैठ जाते हैं या फिर आप ऐसी कंपनी में आ जाते हैं कि आप बुरे लग जाते हैं समाज को। इन सब चीजों से दूर हट के यहाँ आके आपको स्टेज देना, मंच देना, और वहां आपको अपनी कला को प्रमोट करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ समाज में आपकी पहचान बनेगी, नाम बनेगा। ऐसे हमने इसलिए ये ग्रुप बनाया। सो दिस वाज द एम ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसी तरह हमने कॉलेज में ड्रामा कंपटीशन, इंटर कॉलेजिएट डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, कई तरह के शोज ऑर्गेनाइज किए। मोर देन 300 शोज आज तक हमने किए। फिर हम इन सारी एक्टिविटीज को डिजिटल मीडिया के माध्यम से स्टेज थिएटर से लेके फिल्म थिएटर तक लेके आए। टॉकीज में पहले क्या होता था, फिल्म बनने के बाद थिएटर में पेटी आती थी, उसमें रील आते थे। लेकिन फिर वो जमाना आया, डिजिटल मीडिया में कन्वर्ट हुआ, हार्ड डिस्क का वो ट्रेंड शुरू हुआ। तब क्या होता था कि फिल्में बनने के बाद हार्ड डिस्क में थिएटर तक पहुंचाई जाती थी थ्रू सेंसर प्रोसेस। दो सेंसर प्रोसेस वाज सेम। सेंसर प्रोसेस में जैसे हर बॉलीवुड की मूवी को जाना होता है, हर रीजनल मूवी को सेंसर प्रोसेस से पास होना होता है। सेंसर प्रोसेस सेम था। सेंसर सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद ही हमारी फिल्में थिएटर में रिलीज होती थी। तो सबसे पहली हमने VTV प्रोडक्शन, जो पहले तो हमने बैनर रजिस्टर करवाया अंडर वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन। तो 2010 में हमने पहली अपनी फिल्म बनाई और आज 2020 तक हमने 7 फीचर फिल्म्स बना ली हैं, 7 फिल्में बना चुके हैं। तो 10 वर्षों का ये फिल्म पीरियड रहा है, 10 वर्षों का ये फिल्म मेकिंग का अनुभव और 33 सालों का, 33 इयर्स का जो स्टेज एक्टिविटीज का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो लेकर मैं आपके सामने आज हूँ इस विषय पर बात करने के लिए, फिल्म फैक्टर्स। तो जो स्टूडेंट्स फिल्म इंडस्ट्री में अपना कैरियर देखना चाहते हैं और कुछ जो हैं शौकिया तौर पर अपने अंदर के कलाकार को देखना चाहते हैं, उनका एक्टिंग इंटरेस्ट है, इच्छा है, तो ये वेबिनार आज वो अटेंड कर रहे हैं और अटेंड करने से आपको एक्टिंग फील्ड की जानकारी मिलेगी। आज वेबिनार में फिल्म टैलेंट्स का सबसे पहला जो फिल्म फैक्टर है, जिस तरह से बाइफरकेट करके हमने इस वेबिनार में कौन कौन से सब फैक्टर्स पे बात करनी है, वो हमने मैसेज में अपनी सोशल मीडिया सोर्स के थ्रू, पोस्ट के थ्रू पब्लिसिटाइज किया है। तो फिल्म फैक्टर्स जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे वो हैं ऑडिशंस, लर्न ऑन स्क्रिप्ट, एक्टिंग एंड देन डायलॉग डिलीवरी। तो सबसे पहला फैक्टर जो है ऑडिशन, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑडिशन के पॉइंट्स को समझाया गया है। So first of all we will talk on the factor auditions. So there are points to be noted
as far as auditions are concerned, interview call to be the best, office location, social media sources. आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ऑडिशन के लिए जब आप जाते हैं तो ऑडिशन क्या है. सबसे पहले आपको समझना है ऑडिशन क्या है. ऑडिशन इज लाइक एन इंटरव्यू. जब आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो यहाँ पर भी फिल्म इंडस्ट्री में आपको फर्म करना है, आपको एक्टिंग करनी है, उस फील्ड में जाना है. फिर जब आप ऑडिशन के लिए जाते हैं तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए एक तरह का इंटरव्यू है. और जिस तरह हम इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देते समय कई सारे कैंडिडेट्स आते हैं, उनमें से हमें अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रूव करना होता है. तो यहाँ पर भी आपको अपने आप को, सारे स्ट्रगलर्स, सारे फ्रेशर्स, कई सारे एक्टर्स वहां पर ऑडिशन के लिए आते हैं, तो आपको सबसे पहले वहां पर अपने आप को प्रूव करना है. जो किरदार, जो स्क्रिप्ट आपको दी गई है उस पर्टिकुलर रोल के लिए यू आर द बेस्ट. मीन्स व्हेन 5 वैकेंसीज आर देयर, लेकिन 100 उम्मीदवार आए हैं, 5 रोल हैं, उनमें से जो है 5 चुने जाएंगे, उन्हीं को पर्टिकुलर रोल अलॉट होगा. यू हैव टू बी अमंग 5 जो पास होते हैं. मतलब जो 95 ऑडिशन में फेल होते हैं उनमें से आपको नहीं बनना है. ऑडिशन के लिए जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है. दिस इज द सब फैक्टर ऑफ दिस कंसर्न. जैसे आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी फील्ड को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर फील्ड, पर्टिकुलर बिजनेस की ऑफिस आप जानते हैं. तो यहाँ पर भी आपको ऑडिशन के ऑफिस कहाँ पे होते हैं. प्रोडक्शन हाउस, जैसे हम मुंबई के आसपास रहते हैं तो मुंबई में आदर्श नगर या फिर अंधेरी में इन्फिनिटी मॉल के पास जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, कास्टिंग एजेंसीज हैं, या फिर कई अन्य शहरों में जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, ऑफिसेस हैं, वहाँ पर हम जाते हैं. वहाँ वो ऑडिशंस लेते हैं. इस तरह ऑडिशन की जो जगह है, प्रोडक्शन हाउस की ऑफिस होती है, वो आपको पता होना चाहिए. अब ये ऑडिशन कब ली जाएगी, तारीख क्या होगी, समय क्या होगा, ये जानने का जो सोर्स है, जो माध्यम है, वो है सोशल मीडिया. और आपके रिलायबल सोर्सेस, जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, उनसे अगर आपका कांटेक्ट है, उन पे विश्वास आप कर सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं. या फिर सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, FB पेज है, हर एक प्रोडक्शन हाउस के अपने अपने वेबसाइट्स हैं, वहां पे आप जा सकते हैं. सोशल मीडिया सोर्सेस से आपको पता चलेगा कि ऑडिशन कहाँ कहाँ है. द नेक्स्ट स्टेप इज टू बी अवेयर ऑफ प्रोडक्शन हाउस एंड कास्टिंग एजेंसीज. वहां पर जो कास्टिंग एजेंसीज की जो जेन्युइननेस है वो आपको जाननी है. ये बहुत जरूरी होता है कि आप जब ऑडिशन देने के लिए आते हैं तो एजेंसीज जो हैं वो फेक तो नहीं है. कई बार दूसरे शहरों से जब आप मुंबई में स्ट्रगल के लिए आते हैं तो ऑडिशन के लिए पेरेंट्स जो है आपको मना करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री ठीक नहीं है, वहाँ धोखा होता है, नाम खराब है, वहाँ पर मत जाओ, धोखा होगा. तो ये सारी बातें बोली जाती हैं, लेकिन यूथ जो है, आजकल के बच्चे जो है, मानते नहीं हैं. पेरेंट्स वहाँ सोचते हैं कि चलो आज के ज़माने में बच्चों को एक मौका देना चाहिए अपने मन की बात करने का. तो अल्टीमेटली वो उन्हें अलाउ तो करते हैं, लेकिन अलर्ट भी करते हैं कि सावधान रहें. ये अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर आप ऑडिशन देने जाते हैं वो जेन्युइन हो. वो जो प्रोडक्शन हाउस हो, जनरली होता क्या है कि प्रोडक्शन हाउस के जो स्टाफ होते हैं, ऑफिस स्टाफ, ऑडिशन वो लेते हैं, या फिर कास्टिंग डायरेक्टर लेता है, कभी डायरेक्टर भी लेता है, टेक्निकल टीम जो है वो लेते हैं. तो हमारी जो ऑडिशन लेकर हमारा स्टॉक जो है वो जमा करते हैं, फिर टेक्निकल टीम जमा करके वो डायरेक्टर को दिखाते हैं हमारे परफॉर्मेंस को. कहीं भी ऑडिशन के लिए जाएं तो ये सोच लीजिए कि आपको किसी प्रकार की फीस देनी नहीं है. आजकल वो जमाना नहीं है. तो पहले जैसा चलता था कि यहाँ कोऑर्डिनेशन होती है, कोऑर्डिनेटर की ऑफिस है, रजिस्ट्रेशन करो, फॉर्म भरो, पैसा भरो, फला फिल्म के लिए आपको ऑडिशन के लिए जाना होगा. ऑडिशन नाउअडेज इज ओपन फॉर ऑल स्ट्रगलर्स. आप आ सकते हैं, फ्रेशर आ सकते हैं, एक्टर्स आ सकते हैं, और वहां पर कोई भी फीस नहीं ली जाती. और ना ही ऑडिशन के लिए आपको किसी प्रकार का आर्टिस्ट कार्ड जरूरी है. आर्टिस्ट कार्ड तब जरूरी होगा जब आप आर्टिस्ट बन गए. जब आप एक्टर बन गए हैं,
जब आप इंडस्ट्री में कई जगहों पर जाते हैं, लोकेशंस पे जाते हैं, सेट्स पे आप जाते हैं, तब आर्टिस्ट कार्ड की ज़रूरत होती है। ऑडिशन के लिए आर्टिस्ट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस बात को यूं समझ लीजिए कि जब आप एक्टर और आर्टिस्ट प्रूव ही नहीं हुए हैं तो आर्टिस्ट कार्ड कैसा। आप घर से निकले हैं ऑडिशन देने, अभी तक आपने अपने आप को एक्टर प्रूव नहीं किया है और सीधे आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफिस पहुंच गए और कहा कि इशू करो आर्टिस्ट कार्ड, तो ये तो अपने आप से धोखा हुआ। पहले आप अपने आप को प्रूव करो, ऑडिशन दो, वहां पर किसी न किसी तरह पास हो जाओ, फिर एक्टिंग के लिए जब आपको मौका मिलता है तो बाद में आपको सेट्स पे जाना होता है, ऑफिस में, स्टूडियोज में जाना होता है, तब जाके आर्टिस्ट कार्ड की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। अब ऑडिशन में होता क्या है कि सबसे पहले तो आपको एक स्क्रिप्ट दी जाती है। वो स्क्रिप्ट आपको देने के बाद उस स्क्रिप्ट को समझना होता है। पर्टिकुलर समय आपको दिया जाता है स्क्रिप्ट के लिए, ये किरदार है आपका, आपको बता दिया जाता है। फिर ऑडिशन रूम में आपको बुलाया जाता है, वहां आपको वो स्क्रिप्ट परफॉर्म करनी होती है। यू हैव टू परफॉर्म ऑन दैट स्क्रिप्ट। और फिर वहां पर जब आपका परफॉर्मेंस बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा, वो परफॉर्मेंस जमा करके डायरेक्टर को दिखाया जाता है। अगर डायरेक्टर की ओर से आपको फोन आता है तो आप चुन लिए जाते हैं, कास्ट हो जाते हैं। तो इस तरह ऑडिशन का पूरा प्रोसेस होता है। और फिर इस ऑडिशन के प्रोसेस में इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा फैक्टर है, ऑडिशन के प्रोसेस में सबसे पहले स्क्रिप्ट मिलती है। सो नेक्स्ट फिल्म फैक्टर इज लर्न ऑन स्क्रिप्ट। हाउ टू लर्न स्क्रिप्ट। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि शो द पीपीटी पेज ऑन स्क्रीन। यस, लर्न योर स्क्रिप्ट। किस तरह आप स्क्रिप्ट को समझें, ये पॉइंट्स आपके सामने स्क्रीन पर है। रीड विथ कंसंट्रेशन, पर्टिकुलर वर्ड्स, फेलो कैरेक्टर, इमेजिनेशन। आपको जो है स्क्रिप्ट को ऐसे ही पढ़ के मैं तैयार हूं ऐसे नहीं कहना है। ये यहाँ हम टाइम पास के लिए नहीं आए हैं कि चलो एक दूसरे के देखा देखी हम आ गए, वो आया तो मैं भी आया, ऑडिशन दिया। आपको सचमुच अगर एक्टिंग में इंटरेस्ट है, सचमुच अपने आप को एज एन एक्टर प्रूव करना है, तो आपको सबसे पहले ज़रूरत है कि आप इस स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ें, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, शिद्दत के साथ पढ़ें, डेडिकेशन के साथ पढ़ें। पढ़ने से क्या होगा कि स्क्रिप्ट का जो कॉन्सेप्ट है, किरदार है, सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और समझ में आने के बाद आप समझ में आने के लिए स्क्रिप्ट दो चार बार पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। इसमें आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएंगे। फिर डायलॉग्स को आपको समझना है, डायलॉग्स के वर्ड्स को आपको समझना है, पर्टिकुलर वर्ड्स जो है कहाँ पर स्ट्रेस देना है, पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से आपको वो सब करना होगा। आपको डायलॉग दिया गया है, आपको स्क्रिप्ट में उस डायलॉग में क्या क्या वर्ड्स हैं, वर्ड्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप डायलॉग में बोलेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारी एक फिल्म है वेलकम लक्ष्मी, जिसका डायलॉग जो है मैं हिंदी में अनुवाद करता हूँ। डायलॉग ये है, मैं यहाँ अपना पैसा वापस लेने आई हूँ। मैं अपना पैसा वापस लेने आई हूँ। अब मैं इस डायलॉग में समझिए एक वर्ड पैसा पे स्ट्रेस देता हूँ। देखिए, हर एक वर्ड पर जब आप अलग अलग से स्ट्रेस देकर डायलॉग बोलेंगे तो हर बार डायलॉग के मायने बदल जाते हैं। मैं अपना पैसा वापस लेने आई हूँ। मैं अपना पैसा वापस लेने आई हूँ। मैं पे जोर दिया मैंने। मैं अपना पैसा वापस लेने आई हूँ। अपना पे जोर दिया मैंने। मैं अपना पैसा वापस लेने आई हूँ। तो इस तरह से अलग अलग शब्दों पर जोर देने से बार बार हम डायलॉग का अर्थ बदल रहे हैं। तो हमें सिचुएशन को समझना है कि स्क्रिप्ट की मांग क्या है, किरदार की मांग क्या है, उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर वर्ड पे हमें स्ट्रेस देना है। और इस तरह बोलने के लिए हमें ये सारी बातें ध्यान में रखनी होगी। देन थर्ड पॉइंट इज फेलो कैरेक्टर। आपका जो सहपाठी किरदार है वो कौन है। आपको जब स्क्रिप्ट दी जाती है तो उसमें जो डायलॉग्स लिखे गए हैं आपको बताया जाता है कि ये आपके डायलॉग्स हैं, आपको उसमें अपना किरदार पढ़ना है। लेकिन स्क्रिप्ट में आपका जो सहपाठी किरदार है उस किरदार के डायलॉग क्या है और आपके डायलॉग्स क्या है, ये सब आपको स्टडी करना है। तब आपको समझ में आएगा कि वो किरदार क्या है, उस किरदार के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है।
अगर वो किरदार आपकी माँ है, आपके डैडी है, या फिर बड़े बुजुर्गों में से कोई है, या फिर आपके दोस्तों यारों में से कोई है, तो अकॉर्डिंगली उस कैरेक्टर को समझने के बाद ही आप उस पर्टिकुलर डायलॉग को इस टोन में बोल पाएंगे। तो फेलो कैरेक्टर, साथी किरदार जो है समझना भी जरूरी है। एक डायलॉग है, मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, वेलकम लक्ष्मी मूवी का ही है। आप ही ने तो कहा था कि इंसान पैसे से सब कुछ खरीद सकता है। अब इस डायलॉग को मैं सामने जब कोई दोस्त यार है तो कैसे कहूंगा, अरे यार आप ही ने तो कहा था कि इंसान पैसे से सब कुछ खरीद सकता है, और फिर अभी यार आप कमाल है यार। ये दोस्ताना अंदाज। आपने डायलॉग फ्रेंडली अंदाज में कहा, लेकिन जिनसे आप आदर के साथ बात करते हैं, सम्मान के साथ बात करते हैं, तो आप विनम्रता के साथ ये डायलॉग कैसे बोलेंगे? आप ही ने तो कहा था कि पैसे से इंसान सब कुछ खरीद सकता है। देखिए, दोनों डायलॉग्स बोलते समय कितना मतलब आपने अंतर किया। दोनों में जो अंतर है वो आपको समझना चाहिए। जब आपने समझा कि सामने जो किरदार बोल रहा है वो किरदार कौन है, किस कैरेक्टर के साथ बात कर रहे हैं आप, तो ये सारी बातें लर्न योर स्क्रिप्ट में समझनी है। फिर लर्न योर स्क्रिप्ट का नेक्स्ट स्टेप है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, उस स्क्रिप्ट को पढ़ते समय पर्टिकुलर सिचुएशन को इमेजिन करना है। आपको जो सिचुएशन बताई गई है, आप जब वहां ऑडिशन पर प्रोडक्शन हाउस के स्टाफ से आपने पूछ लिया कि सिचुएशन क्या है, या फिर 4-5 बार स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपको समझ में आया कि सिचुएशन क्या है, फिर आप उस सिचुएशन के आधार पर सेट्स को, लोकेशन को, अपने किरदार को इमेजिन करेंगे। सेट्स को, लोकेशन को इमेजिन करने के बाद, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे डॉक्टर CA किशोर पेशोरी सर हैं। कभी मैं उनको कहूं कि सर आ जाइए ना आप भी हमारे प्रोडक्शन हाउस में, कोई रोल आप भी करिए। मैं भी तो देखिए एडवोकेट हूं, फिर भी एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है, तो आपके मन में भी वो कभी ये बात होगी, आइए सर आपको राजा का रोल देते हैं। तो सर ने मान ली बात कि चलो लाइफ में एजुकेशन के लिए तो हमने बेस्ट किया ही है, अब ये भी एक्टिविटी एक लाइफ अचीवमेंट में करते हैं, तो उनको राजा का रोल हमने दे दिया। अब राजा का रोल करने के लिए सर को क्या करना होगा कि पर्टिकुलर सिचुएशन इमेजिन करनी होगी। इमेजिनेशन में उनको जो है राजा के महल में जाना होगा, और ये इमेजिनेशन करने के बाद अगर आप वहां पहुंच गए तो राजा के सिंहासन पर बैठ के आपका बोलने का अंदाज उस तरह से हो जाएगा। तो किरदार को इमेजिन करेंगे तो ही आप उस किरदार को अच्छे से निभा पाएंगे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग इमेजिनेशन इज द पार्ट ऑफ लर्न योर स्क्रिप्ट। अब देन नेक्स्ट फैक्टर इज, स्क्रिप्ट तो आपने लर्न कर ली, नेक्स्ट होता है उस स्क्रिप्ट पे आपको परफॉर्म करना। परफॉर्म करने के लिए आपको ऑडिशन रूम में बुलाया जाता है, जहां आपको एक्टिंग करनी होती है। टेक्निकल टीम विल शो नाउ these acting concerned step wise points on screen, but let us first know about acting है क्या। एक्टिंग, अभिनय जो है, प्रस्तुत करने का अहम माध्यम है आंखें। आंखों में भाव, आंखों में भाव जब आते हैं, आंखों में एक्सप्रेशंस, वो भाव जो आते हैं तो चेहरे पर वैसे एक्सप्रेशंस आ ही जाते हैं, और बॉडी लैंग्वेज भी अकॉर्डिंगली एक्टिव हो ही जाती है, और इस तरह अच्छे से आप एक्ट कर सकते हैं। एक्टिंग जो है वो नेचुरल होनी चाहिए। इन्वॉल्वमेंट इज रिक्वायर्ड। इन्वॉल्व जब तक आप नहीं होंगे तो परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं कि हॉलीवुड के कलाकार हैं सैनफोर्ड मेजनर, उन्होंने एक्टिंग को इस तरह से डिफाइन किया है, एक्टिंग इज बिहेविंग ट्रूथफुली अंडर द इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस। एक्टिंग इज बिहेविंग ट्रूथफुली अंडर द इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस, मतलब इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस के अंदर हम ट्रूली बिहेव कर रहे हैं, और उसी तरह बिहेविंग को हम एक्टिंग कह रहे हैं। यानी हम रियल लाइफ में जा रहे हैं, रियल लाइफ से दूर हो रहे हैं, रियल लाइफ में हम इमेजिन कर रहे हैं उस किरदार को, और फिर उसी पर हम एक्ट कर रहे हैं। तो अपने कैरेक्टर को समझना होता है, जो आप रियल लाइफ में नहीं है, उस रियल लाइफ में है। आपको रियल लाइफ में आप क्या है उसको नहीं समझना होता है। अपने आप को समझना बंद कर दो, कैरेक्टर को समझो। वहां हमें किरदार क्या निभाना है उसको समझना है। स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ, जस्ट कीप मम एंड एक्ट। अपने आप को समझाना बंद करो, किरदार को समझो, किरदार में घुस जाओ, गिव योर बेस्ट। आपके एक्सप्रेशंस, आपकी परफॉर्मेंस को उभारते हैं। कई बार हमारे मन में चल रही बात को
मुख से बोले गए डायलॉग्स में ही बोलना ज़रूरी नहीं होता है। आपकी बात को आपके एक्सप्रेशंस बयान करते हैं। कहते हैं ना, एन आउंस ऑफ एक्सप्रेशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ वर्ड्स। छोटा सा एक्सप्रेशन कई सारे वर्ड्स, कई सारे शब्दों को बयान कर देता है। तो एक्टिंग कहते हैं एक्सप्रेशन को, भाव को। भाव आते हैं आंखों से। आंखों से जब चेहरे पर एक्सप्रेशन भी आ जाते हैं। और फिर जब हम कैमरा के दायरे में काम करते हैं या स्टेज के दायरे में काम करते हैं तो फिर बॉडी लैंग्वेज एंड फेस पे वो जो है एक्सप्रेशन आ ही जाते हैं। स्टेज पे जब हम काम करते हैं तो वी हैव टू रीच अप टू बैक रोज। दूर बैठे हुए ऑडियंस तक हमको पहुंचना होता है। कैमरा पे जब एक्ट करते हैं तो आप एक छोटे से दायरे में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े बैनर की फिल्म है, लॉन्ग सेट्स हैं, लॉन्ग शॉट्स हैं, लोकेशंस को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं लोकेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। एक्टिंग को ऑडियंस तब अप्रिशिएट करती है जब क्लोज कैमरा चेहरे पर हो, जब आपके चेहरे के भाव, आंखों के भाव, आपके एक्ट करने का अंदाज ऑडियंस देख पाती है। और खुद ब खुद ऑडियंस से वाह क्या एक्टिंग है, ये कॉम्प्लीमेंट निकल ही जाता है। आपकी एप्रिसिएशन होती है। इस तरह से भाव जो है वो एक्टिंग के रूप में उभरते हैं। एक्टिंग के अलग अलग मूड्स होते हैं। रंगमंच के हवाले से अगर कहें तो नवरस होते हैं, 9 मूड्स ऑफ एक्टिंग। एक्टिंग के ये 9 मूड्स क्या हैं, आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लव, ब्रेवरी, एंगर, वंडर, फियर, कॉमेडी, ट्रेजेडी, पीस एंड डिस्गस्ट। अब ये आपको जिस तरह की सिचुएशन दी जाती है, जिस तरह के किरदार को आप निभाते हैं, जिस तरह की वहाँ कॉन्सेप्ट है, स्क्रिप्ट है, उस तरह उस मूड में आपको बोलना होता है। वो मूड आपको क्रिएट करनी है। देखिए, आज आप बहुत खुश हैं, लेकिन जिस कैरेक्टर में आपको एक्ट करना है, एक दुखी किरदार निभाना है, तो तब आपको वहाँ दुख प्रकट करना है। उस तरह उस टोन में आपको बोलना है। वो मूड आपको क्रिएट करनी है। कैसे आप दुख प्रकट करेंगे, वहाँ कैसे एक्ट करने की प्रतिभा आप में होगी। अगर आप वो मूड नवरस के, जिस तरह से ये रस आप जानते हैं, ये 9 मूड्स जानते हैं, तो ट्रेजेडी का मूड, करुणा रस का जो मूड वहाँ उपयोग करना है। देखिए, 9 मूड्स को समझिए, आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, मैं एक ही सेंटेंस, एक ही डायलॉग को 9 अलग अलग मूड्स में कहता हूँ। हालांकि एक ही डायलॉग को 9 अलग अलग मूड्स में हर बार जो है सूटेबल नहीं होता। जैसे जो डायलॉग की 9 लाइन है वो 9 अलग अलग मूड्स में सूट नहीं होती। रोमांटिक मूड में जो डायलॉग कहा जाएगा वो दुख की मूड में कैसे कहेंगे। लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि आपको मूड्स समझाऊं कि कैसे एक ही डायलॉग को हम अलग अलग मूड्स में प्रयोग में लाते हैं। अकॉर्डिंग टू मूड कुछ 2-4 वर्ड्स चेंज होते रहेंगे, लाइन्स यहाँ वहाँ चेंज होंगी। सबसे पहले लव मूड, श्रृंगार रस, प्रेम रस। डायलॉग है, मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं और जब आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। अब ये प्रेम रस में कैसे कहेंगे, लव मूड में ये डायलॉग कैसे कहेंगे? मैं आंखें बंद करता हूं तो तुमको देखता हूं और जब आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। ये हुआ प्रेम रस। इसी डायलॉग को अगर बहादुरी वाले मूड में कहना है, वीर रस में कहना है, वीरता के अलग डायलॉग्स हो सकते हैं, लेकिन यहां हम इसी डायलॉग को वीर रस में कहेंगे, मूड ऑफ ब्रेवरी। मेरे पास शक्ति है, शक्ति, दिव्य दृष्टि है। मेरे पास मन की शक्ति है। मैं अपने मन की शक्ति से जब चाहूं तुम्हें देख सकता हूं। आंखें बंद करके भी देख सकता हूं, खुली आंखों से भी देख सकता हूं। शक्ति है मेरे पास, शक्ति। तो यह ब्रेवरी मूड, वीर रस। सेम डायलॉग बोलने में आपने अपनी वीरता बयान की। नेक्स्ट है एंगर, गुस्सा। इसी डायलॉग को अब गुस्से में कैसे कहेंगे? जाओ, चली जाओ यहां से, जाओ यहां से, मैं तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहता। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ, आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, आंखें खोलता हूं तो तुम, जाओ चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, जाओ चली जाओ। ये थी गुस्से की मूड, क्रोध। अब इसी डायलॉग को अद्भुत सरप्राइज मूड में हम कहेंगे, एक्सक्लेमेशन।
जादू है हर जगह तू। वाह, आंखें खोलूं तो तू, बंद करूं तो तू, हर जगह तू ही तू, जादू। ये रहा एक्सक्लेमेशन, सरप्राइज। नाउ नेक्स्ट इज फियर मूड। इसी डायलॉग को डर के अंदाज में कैसे कहेंगे? ये मुझे मार डालेगी, मैं इसे नहीं देख सकता, मैं आंखें बंद कर लेता हूं। आंखें बंद करता हूं तो भी मुझे यही दिखाई दे रही है, ये मुझे मार डालेगी, ये मुझे मार डालेगी, ये मुझे मार डालेगी। ये है डर की मूड। तो हमने यही डायलॉग अलग अलग मूड में प्रस्तुत किया। अभी इसी को हम हास्य रस, कॉमेडी में कैसे प्रस्तुत करेंगे? कॉमेडी ये तो मुझे हर जगह दिखाई देती है, ये तो मुझे हर जगह दिखाई देती है। सिर्फ मुझे दिखाई देती है या औरों को भी दिखाई देती है? पिशोरी सर, आपको दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे तो दिखाई दे रही है, मुझे तो दिखाई दे रही है, मुझे तो दिखाई दे रही है। यह है कॉमेडी मूड। अब इसी डायलॉग को हम ट्रेजेडी मूड में बोलेंगे। यही डायलॉग ट्रेजेडी मूड में, करुणा रस, दुख। जब से तुम मुझे छोड़कर चली गई हो, दिल को चैन नहीं, आराम नहीं, हर पल तुम्हें देखता हूं। आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखता हूं, आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं। ये दुनिया कहती है कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, पर नहीं, तुम यहीं। चलिए आओ वापस, चलिए आओ, चलिए आओ वापस, चलिए आओ। करुणा रस, यही आपने मूड देखी दुख की। अब इसी को हम शांत रस, संतुष्टि रस, मूड ऑफ पीस। मैं संतुष्ट हूं, मुझे आज किसी बात की इच्छा नहीं। मैं जब तुम्हारी भी इच्छा करता हूं तो बस आंखें बंद कर लेता हूं और तुम्हें अपने सामने पाता हूं। मुझे संतुष्टि का, शांति का आभास हो रहा है। ये था शांति रस, पीस मूड। अब इसी को हम विलियन शेड में कहेंगे, बदसरस, बुराई, डिस्गस्ट मूड ऑफ विलियन। तुम क्या समझती हो? तुम मुझसे बच सकती हो? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं बच सकती हो तुम। मैं जब चाहूं अपने पास बुला सकता हूं तुमको। आंखें बंद करके चुटकी बजाऊं या आंखें खोल करके तुम्हारा नाम पुकारूं, तुम मेरे सामने आ जाओगी। तुम मुझसे बच नहीं सकती, नहीं बच सकती तुम मुझसे, समझी? तो ये 9 डिफरेंट मूड्स, ये विलियन शेड था। फिल्म फैक्टर्स के इस वेबिनार में आप डिफरेंट एक्टिंग फैक्टर्स समझने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा भी यही प्रयास है कि सरल भाषा में आपको इस सब्जेक्ट पर पूरी जानकारी दे पाऊँ। तो इस तरह हमने एक्टिंग के, अभिनय के नव रस समझे। एक्टिंग में आपके भाव तो महत्व रखते हैं, लेकिन एक और बात आपके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, डायलॉग डिलीवरी। One of the film factor related to your act, that is dialogue delivery. Dialogue delivery contains the points like tone pattern, words pattern, attitude, pauses, reaction. कई ऐसे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, सितारे हैं, जो अपनी एक्टिंग की वजह से प्रसिद्ध हैं, लेकिन कई ऐसे बड़े नाम भी हैं जो अपनी यूनिक डायलॉग डिलीवरी की वजह से, आवाज की वजह से ज्यादा फेमस है। उनका डायलॉग डिलीवरी का अंदाज निराला है। डायलॉग डिलीवरी में इंपॉर्टेंट होता है टोन। जैसे मूड है एक्ट की, उसी तरह का टोन होगा तो आपकी डायलॉग डिलीवरी में निखार आएगा। गुस्से वाली मूड है तो गुस्से का टोन चाहिए, कॉमेडी है तो कॉमेडी वाला टोन चाहिए। और फिर उसके बाद वर्ड्स पैटर्न।
जिस शब्द पर कब कहाँ स्ट्रेस देना है, मैंने लर्न स्क्रिप्ट में ये बात बताई आपको। अब देखिए शोले फिल्म का ये डायलॉग है, अरे ओ सांबा कितनी गोलियां है रे इसमें। देखिए बोलने का तरीका, कौन सा शब्द किस तरह से प्रोनाउंस करना है ताकि वो मूड, सिचुएशन, वो किरदार उभर के आए। डायलॉग जो है उसी अंदाज में डिलीवर करेंगे तो एक्टिंग में, परफॉर्मेंस में निखार आएगा। एटीट्यूड इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ डायलॉग डिलीवरी। एटीट्यूड का मतलब होता है कि आपका किरदार क्या है। आप बॉस हैं तो बॉस की तरह बोलेंगे, नौकर हैं तो नौकर की तरह बोलेंगे, प्रेमी हैं तो प्रेमी की तरह बोलेंगे, कभी बाप तो कभी बेटा। एटीट्यूड के अकॉर्डिंग आपकी डायलॉग डिलीवरी होगी तो प्रदर्शन भी बेहतर होगा। जो बड़े कलाकार हैं उनकी डायलॉग डिलीवरी की वजह से वो हमारी चर्चा का विषय बनते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज पॉजेस। पॉजेस भी हर एक बड़े कलाकार के डायलॉग डिलीवरी करने के तरीके में पॉजेस का इंपॉर्टेंस होता है। अब आप देखिए गब्बर सिंह का डायलॉग है एक, होली कब है, कब है होली, कब, अरे ओ सांबा कितनी गोलियां है रे इसमें। अब इन डायलॉग्स में देखिए कहां कहां कब किस शब्द के बाद पॉज देना है। बड़े बड़े एक्टर्स शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इनकी डायलॉग डिलीवरी में पॉजेस का आप महत्व देखिए, किस तरह से डायलॉग डिलीवर करते हैं, पॉजेस देते हैं। तो सही पॉज सही टाइमिंग पे देने से डायलॉग को मीनिंगफुल बनाया जा सकता है, ये बात ध्यान में रखिए। नेक्स्ट फैक्टर इज रिएक्शन। जरूरी नहीं है कि आप अच्छे एक्टर हैं, आप डायलॉग बोलते हैं, एक्ट करते हैं तो ही सीन उभर के आता हो। रिएक्ट करने वाला एक्टर भी अच्छे से सीन को सुपर सीन बना लेता है। हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, ऐसी फिल्में हैं जहां पर आपको रिएक्शन की कॉमेडी मिलती है। जब परेश रावल डायलॉग बोलते हैं तो अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी उनके रिएक्शन कॉमेडी क्रिएट करते हैं। जब अक्षय सुनील शेट्टी बोलते हैं तो परेश रावल की रिएक्शन जो है हमको हंसाती है। कॉमेडी हो, ट्रेजेडी हो, रिएक्शन जो है वो सीन को बेहतर बनाते हैं। तो डायलॉग डिलीवरी में टोन पैटर्न, वर्ड पैटर्न, एटीट्यूड, पॉजेस एंड रिएक्शन, ये सब फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। तो ये आज हमने वेबिनार में एक लिमिटेड पीरियड में हमने फिल्म फैक्टर्स में 4 जो है फैक्टर्स की बात की: ऑडिशन, स्क्रिप्ट, एक्टिंग एंड डायलॉग डिलीवरी। टेक्निकल इश्यूज कुछ हुए हों तो माफ़ी चाहता हूं। अपने अनुभव को मैं इस वेबिनार के माध्यम से मैंने आपके सामने रखा। Once again, I am thankful to management of Shrimati MMK College, Board of Industry, Academia Partnerships, किशोर पिशोरी सर, शोभा मैडम, आरती आहूजा मैडम, आप सभी का मैं धन्यवाद मानता हूं कि आपने मुझे मौका दिया और मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से सब तक पहुंचाया। थैंक यू। Thank you so much, sir. And we've already started getting a lot of questions. So if you could, I'm going to give it over to Ashna now so that she can start answering your questions, help you with the questions actually. Yeah, so the question is, so as you know, there's a lot of struggle involved in the industry, in the film industry. So what's your advice for all the actors who want to start a career in the film industry? There is, yes, struggle is there. I think struggle is there in every field. Without struggle, there is no life. संघर्ष के बिना, स्ट्रगल के बिना जिंदगी है ही नहीं। स्ट्रगल तो हर फील्ड में है, तो सचमुच जिनको इस फील्ड में कैरियर चाहिए उन्हें स्ट्रगल करनी ही होगी। एज स्ट्रगल इज लाइफ। सो कहते हैं ना, एक गीत है कि कैसे नादान है वो गम से अनजान है जो, रंज ना होता अगर तो खुशी की क्या कदर। रंज जरूरी है, तब जाकर खुशी मिलती है। स्ट्रगल के बाद ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलती हैं, लेकिन इसमें आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। एज फार एज स्ट्रगलर्स आर कंसर्न बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप जेन्युइन और फेक में फर्क समझें।
और अपने कैरियर के बारे में ऑथेंटिकेट होकर जाएं, तब जाकर आपको अपने स्ट्रगल के फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। Okay, sir. Thank you. So the second question is, according to you, which is the most important quality in a filmmaker and an actor? फिल्म मेकर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटी बहुत ज़रूरी है कि उसका जो प्रोडक्ट है, जो फिल्म मेकिंग कंसर्न में कॉन्सेप्ट है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। नाउअडेज कई फिल्में हैं, लो बजट में भी फिल्में हैं, वेबसाइट्स में भी रिलीज होती हैं आजकल फिल्में, लोग देखेंगे, कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, सो फिल्म इज गुड। एंड एज फार एज यू आस्क्ड अबाउट गुड एक्टिंग, तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक्टर में ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले वो अच्छे इंसान हो, अच्छे लिसनर हो, अच्छे ऑब्जर्वर हो, अपने आप को एक्सप्लेन ना करें, दूसरों को समझने की कोशिश करें, किरदार को समझने की कोशिश करें, बहुत अच्छी कोशिश करें, तो एक अच्छा एक्टर वही बन सकता है जो ज्यादा सोचे उस किरदार के बारे में, फिर कम समय में फील कर 2 पल में ज्यादा से ज्यादा थॉट्स को प्रस्तुत करे। सो इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज वेरी नेसेसरी दैट वी गेट इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर विच एवर इज बीइंग अलॉटेड टू अस। एंड एज फार एज फिल्म्स का कंसर्न है, इट वुड बी गुड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिल्म शुड बी गुड। Okay, sir. Thank you. And the next question is, film critics क्या देखते हैं एक मूवी में या एक शो? फिल्म क्रिटिक्स तो आजकल तो फिल्म क्रिटिक्स तो यही देखते हैं कि फिल्म में कितना कमाया फिल्म ने, फिल्म कितने करोड़ों का बिजनेस कर रही है। मेरे विचार से तो यही हो रहा है। फिर दूसरी बात जो जिसके बारे में क्रिटिक्स बात करते हैं, अगेन मैं कहूँगा कि फिल्म के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि और हर इंसान के दिल को छू जाती है और ऑडियंस ओपिनियन किस तरह की टीआरपी देती है, उस पर ही क्रिटिक्स बात करते हैं। ऑडियंस का किस तरह का क्रेज रहता है उस पर बात करते हैं। और क्रिटिक्स हमेशा बजट फैक्टर्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं। वो फैक्टर भी इन्हीं बातों के साथ रिलेट करता है। कभी क्रिटिक्स जो है हमारे सामने फेयर भी नहीं आते हैं। मेरी राय, उनकी राय अलग होती है, हमारी राय अलग होती है, तो क्रिटिक्स फेयर नहीं होते, ऐसा मेरा मानना है। ओके सर। सर अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू डील विद एन एक्टर हु इज बीइंग अनप्रोफेशनल, जो सेट पे लेट आता है या कुछ भी। अनप्रोफेशनल जो है, जो सेट पे लेट आता है, बाकी सारी जो टीम है उनका ख्याल नहीं करता है, उस समय उस एक्टर के साथ कामली डील करना चाहिए और थोड़ा बहुत सबक सिखाना भी जरूरी होता है। लेकिन नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है उसके तहत सोचना पड़ता है। दूसरे प्रोडक्शन हाउस तक वो मैसेज जरूर पहुंचता है। वो एक्टर, उसके साथ हम किस तरह से डील करते हैं, क्योंकि हम फिल्म बनाते हैं, हमारा मिस डील करना हमारी ही फिल्म को रोक ना दे, प्रोडक्शन के बनते हुए प्रोडक्ट को इंटरप्ट ना करे, तो किसी तरह उसको चलाना होता है। लेकिन उसका अनप्रोफेशनल होना उस एक्टर का, वो उसके लिए, खुद के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उसके कैरियर में जो है उसको हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। वो हमेशा जब इम्प्रोफेशनल बनता है, उसके अपने पर्सनैलिटी के बारे में एक ओपिनियन बन जाता है। हर प्रोडक्शन हाउस के प्रोजेक्ट में वो ऐसा ही करता है, ये ओपिनियन बन जाता है और फिर उसको प्रोजेक्ट्स कम मिलने लगते हैं। दो कितना भी अच्छा एक्टर हो, लेकिन अनप्रोफेशनल है तो कई प्रोडक्शन हाउसेस सोचते हैं कि उन्हें हम कास्ट ना करें। Okay, sir. Thank you so much. So this brings us to the end of this engrossing and informative session. I would now like to request Ms. Aarti Ahuja, BA MMC Coordinator, MMK College, to give the closing remarks. Thanks a lot, sir, for your session. It's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution. I am Ms. Aarti Ahuja on behalf of Srimati MMK College of Commerce and Economics. First of all, I would like to thank our today's speaker
who spared time from his busy schedule to conduct this session and making us walk through the factors of various, filmmaking that actually takes place. Another thing, I would also like to thank our respected principal, Dr. C.A. Kishore Peshori, vice principals, Dr. Megha Somani, and Mr. Mani Iyer, for being the catalyst that motivated the department to do the best. Also, I would like to thank the people who worked behind the scene to make this event happen. Our technical arrangement team, BIAP, without which the technical session wouldn't have been possible. Last but not the least, I would also like to thank each and every one of y'all for being a great audience and a support. Thanks a lot, everyone. Over to you, Ria. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you for everyone who has attended this session. If you're interested in more such sessions, please check out our YouTube channel. The link is in our Instagram bio. Please go and see such webinars because you might just find something interesting. And thank you for tuning in.